Thank you very much, ma'am. Most pleasurable moment for me because always I wanted to guide on educational level because whatever research I have done in my last 27 years, I'll today try to present so that not only it will be helpful to us, but it will be helpful to all those students also whom we are guiding them for the whole year academically that way. So let us start. My name is Dr. Udesha, and since 95, I passed my medical for 5.5 year graduation. For 3 years, I did medical practice in Ramakrishna Mission Hospital, Khar, Bombay. But due to limitation of my medical practice, I slowly shifted to my spiritual research and medical research. And today, I'll try to present whatever research I have done on the mind, brain, body, and soul level. So definitely you will all enjoy it, and I want some interaction from you, your side also, because whatever queries or questions if you have, you're most welcome to interrupt me in between, and you can ask me. Okay, so let us start. I will put a small presentation over here. Yeah. I hope everyone is able to. Yeah. Okay. Is it visible? The slides are visible? Okay. Okay. Good. Thank you very much. So I will be taking in Hindi and English so that a few things will be much clear for us. So there are two systems. One is mind energy, जिसको हम mind power भी कहते हैं, and second is NLP. You must be aware about the NLP is neuro linguistic programming. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारे ब्रेन, न्यूरो मतलब ब्रेन के सेल्स, उसके थ्रू हमारी जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, उसको हम प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग पीरियडिकली कर सकते हैं. दैट इज वी कैन रीप्रोग्राम आवर बिलीफ सिस्टम, our experiences, our traumas, whatever we have gone through from our childhood till today. And periodically we can change our goals, we can periodically change our wishes, vision boards, whatever, through the NLP programming. So mind को हम reprogram कर सकते हैं, brain को हम reframing कर सकते हैं. This is very important. So now what is mind? Mind is a software and brain is a hardware. मतलब जैसे मोबाइल में भी दो चीजें होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है. हार्डवेयर को हम इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम पीरियडिकली कभी भी चेंज कर सकते हैं. हम एप्लीकेशंस को चेंज करते हैं, हम अपडेट्स करते हैं. तो ये कैसे करते हैं और इसका साइंस क्या है, आज वो हम जानने की कोशिश करेंगे. सो देयर इज अ इनपुट इनसाइड द माइंड फ्रॉम द एनवायरमेंटल साइड. बाहर से चीजें आती है, हम उसको देखते हैं थ्रू आवर सेंसेस, समझते हैं, और धीरे धीरे हम ब्रेन उसको प्रोसेस करता है. और ब्रेन से जो भी प्रोसेस होने के बाद ये बॉडी में जाता है. आउटपुट इज अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिशंस. मतलब थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी में कंडक्शंस जाते हैं, सिग्नल्स जाते हैं, हार्मोनल सिग्नल्स जाते हैं, गैस्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं, फिर कार्डियक सिग्नल्स जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिग्नल्स जाते हैं, किडनी के सिग्नल्स जाते हैं. सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब सिग्नल्स के वजह से रन करते हैं. अब होता क्या है, हमारे जो इनपुट्स होते हैं वो सारे बिलीफ सिस्टम से होते हैं कि मुझे लग्जरी चीजें ये चाहिए, या मुझे एजुकेशन में ये डिग्री चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इस प्रकार का बिजनेस चाहिए. ये सारे हमारे इनपुट्स हैं और उन्हीं को हम अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं सिचुएशंस को, परिस्थितियों को. वी ट्राई टू अट्रैक्ट द पीपल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट द इनपुट, राइट? For example, when I was a medical practitioner, I used to attract all the patients in my clinic. So 40 to 50 patients I used to see in my daily general practice. But when I shifted to my research, I started attracting all those people who wanted to do research on medical and spiritual side. Like I attracted people like Leelavati doctors, Hinduja doctors, then even on the spiritual side, Ramdev Baba, Shri Shri Ravi Shankar, Brahma Kumaris, and Vipassana, Goyanka ji, all such people I started attracting them. So वो मेरा input हो गया और मैंने उसके ऊपर process start किया. And what was the output? Output, I started doing the research on two things. One is the cause of disease and second is the cause of suffering. ये मेरा दो subject था जिसके ऊपर मैंने research start किया. So what I did, I had gone through the different equipmental researches.
मतलब उस इक्विपमेंट से मुझे ये पता चला, बिकॉज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का एक रिसर्च टीम है और हमारी एक ऑरा रिसर्च टीम है, एनर्जी फील्ड की रिसर्च टीम है। तो उससे मुझे ये पता चला कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और उसमें 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ओनली 6,000 थॉट्स आर ऑन एन एवरेज पॉजिटिव। तो आप सोचिए, जो 54,000 नेगेटिव थॉट्स जो हमारे माइंड में है, जो सॉफ्टवेयर में है, वो जब न्यूरो ट्रांसमिशन से बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के ऑर्गेनिक सेल्स में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, पॉइजनियस हो जाती है, और लॉन्ग लास्टिंगली वो कुछ ना कुछ बीमारी के फॉर्म में बाहर आती है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल दे सफर फ्रॉम सिस्ट, रीनल कैलकुलस, गॉल ब्लैडर स्टोन और फाइब्रॉइड और अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, अर्थराइटिस। ये सारी आउटपुट्स हैं जो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। तो रिसर्च ये कहता है कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिकली होती है, मतलब जो माइंड से क्रिएटेड है और बॉडी अनवांटेडली सफर करता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जो भी हमारे पैरामीटर्स ऑब्जर्व करते हैं या टेस्ट करते हैं, ब्लड, यूरिन, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो उन आउटपुट की ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा आपका शुगर 350 है तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, इनपुट की नहीं करते कि भाई क्यों शुगर इतना बढ़ गया है करके, क्यों वेट बढ़ रहा है, क्यों थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है, क्यों सिस्ट हुआ है, क्यों स्टोन हुआ है, क्यों कैंसर हुआ है। उसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं करता। हम सारे डॉक्टर्स को ये ट्रेन किया गया है कि डायग्नोसिस ऑर्गेनिज्म बेस पे होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन बेस पे होता है। तो हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं, एंटीवायरल देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, एंटी अर्थराइटिस, एंटी अस्थमेटिक, अपोजिट मेडिसिन देते हैं। तो उससे क्या होता है इश्यू, हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और सिर्फ मेडिसिन के वजह से सिर्फ हम उसको कंट्रोल करते हैं, उस पैरामीटर्स को हम सप्रेस कर देते हैं जो ज्यादा बढ़ा हुआ है, और अगर वो कम है तो हम उसे स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कुछ लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम नियोमार्किनजोल या एल्ट्रोक्सिन, ये सारी मेडिसिन देके उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो अब कॉज क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कॉज इज इन द ब्रेन, कॉज इज इन द माइंड। किस तरह से आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हो कि लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं लॉजिकल ब्रेन है और राइट साइड का इमोशनल ब्रेन है। रिसर्च के मुताबिक 18% लॉजिकल ब्रेन है हमारे पास और 80% इमोशनल ब्रेन है हमारे पास। मेल हमेशा लॉजिकल ज्यादा होते हैं और फीमेल्स ज्यादा इमोशनल ज्यादा होते हैं। इसलिए फीमेल्स को बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो जो भी इमोशंस, ट्रॉमास राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, पेरेंटल या जो भी एनवायरमेंटल या सोशल कॉजेज जो भी होते हैं वो होल्ड करते हैं, और धीरे धीरे वो होल्ड करने के वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंस्ड होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के वजह से उनका पिट्यूटरी डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, और फिर उनके बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग जो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन्हें एक्चुअली इस दोनों ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा कि इन बच्चों को दोनों माइंड को यूज करना है। एक कॉन्शियस माइंड को यूज करना है, एनालिटिकल माइंड को यूज करना है, और एक सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है। सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ज्यादा होती है, मून की क्वालिटीज ज्यादा होती है। कॉन्शियस माइंड में सन की क्वालिटीज ज्यादा होती है, सूर्य की क्वालिटीज ज्यादा होती है। और बहुत रेयरली लोगों को पता है कि हमारे पास तीसरा माइंड भी है, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड। ये सिर्फ 2% है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो हायर सेल्फ को मानते हैं, जो गॉड गॉडेसेस को मानते हैं, जो गुरु को मानते हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जीज को मानते हैं, उनके लिए ये सुपर कॉन्शियस माइंड है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या हम हीलिंग मॉडलिटीज करते हैं, तो हम ये सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग जीनियस होते हैं या जो लोग गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, इनका सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। सो ये कभी भी कोई भी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, या अब्दुल कलाम है, रामकृष्ण परमहंस है। ये सारे लोग गॉड गिफ्टेड थे, इनके सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव थे, और वो बहुत इजीली यूनिवर्स के जो डेटाबेस होता है, जो आकाशिक रिकॉर्ड जिसको हम रिसर्च में कहते हैं, इस आकाशिक रिकॉर्ड से वो चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं। एक्चुअली जो वेस्टर्न
साइंटिस्ट भी थे, आइंस्टाइन है या डॉक्टर न्यूटन है, ये लोग भी बेसिकली सुपर कॉन्शियस माइंड का ही इन्होंने इस्तेमाल किया था, बट इन्होंने उसको एक्नॉलेज नहीं किया बिकॉज स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट उनके सिलेबस में नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने कभी इसको मेंशन नहीं किया। लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम माइंड के बाद हम आते हैं ब्रेन की तरफ, ब्रेन के 5 सेंसेशंस की तरफ। तो गॉड ने जो हमें ब्रेन दिया है वो सेंस के वजह से दिया है। 5 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा विजुअलाइजेशन है, हम आईज से देखते हैं, ऑडिटरी है जो कान से सुनते हैं, स्मेल है जो नोज से हम उसको सेंस करते हैं, टेस्ट है, और लास्ट टच सेंसेशंस है। तो हमारा ब्रेन का जो मेन पर्पस है वो सेंस करना है कोई भी चीज को। अब रिसर्च के मुताबिक हमारे पास 3 सेंसेस ज्यादा पावरफुल है, इसको कहते हैं VAK, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट और स्मेल बहुत कम लोगों को एक्टिवेटेड रहता है करके। तो हम क्या करते हैं, इन लॉजिकल माइंड से जो भी कुछ एनालाइज करते हैं, उसको धीरे धीरे हम सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, एक फिल्टर के को पास करते हुए ये सबकॉन्शियस में जाता है, और ब्रेन उसको सेंस करता है। ब्रेन ये सेंस करता है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, और काफी बार वो सेंसेशंस को लेने के बाद वो न्यूरोट्रांसमिशंस के जरिए, ये साइनेप्सेस के जरिए ये बॉडी में ट्रांसफर करते हैं करके। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे फियर है, जेलसी है, ईगो है, इनसिक्योरिटी है, हेट्रेड है, रिवेंज है। ये सारी सबकॉन्शियस की ओवरलोडेड फाइल्स है जो न्यूरोट्रांसमिशन से हमारी बॉडी में जाके वह कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होता है, और वहां पे फिर डिपोजिशन शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों की ओबेसिटी हो जाती है, वेट गेन बढ़ता है, बिकॉज ये ज्यादा ही चीजों को वो डाउनलोड करते जाते हैं। और कुछ लोग उसके वजह से इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है और वो बैक्टीरिया वायरस को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब बैक्टीरिया वायरस ओरिजिन नहीं है किसी भी बीमारी के। अगर कोविड भी देखेंगे तो उनको ही अटैक किया है जिनकी इम्यूनिटी वीक है करके। अदरवाइज जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कभी कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक ही नहीं कर सकता। और ये हमें बच्चों को बहुत समझाना है, स्कूल के बच्चों को, कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना हो सके खाली रखो, अनवांटेड स्टफ को यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। पीरियोडिकली क्लटर्स निकालने हैं, जैसे घर में हम कचरे को निकालते हैं, तो उसी तरह से ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसको, क्लटर्स को निकालते हैं। जैसे मोबाइल फोन में काफी बार हम गैलरी में जाके वीडियोस डिलीट करते हैं, अनवांटेड इमेजेस डिलीट करते हैं, ऑडियोस डिलीट करते हैं, फिर उसका स्पेस बढ़ते जाता है करके। तो रिसर्च के मुताबिक हम सिर्फ 3% का ब्रेन यूज करते हैं, 97% हम यूज नहीं करते। आप सोचिए इस 3% में भी अगर हमने अनवांटेड स्टफ को ओवरलोड कर लिया तो डेफिनेटली हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, ये कम हो जाएगी। मेडिकल साइंस पैथोलॉजी पे काम करता है और हम लोग फंक्शनल चीजों पे काम करते हैं। मतलब अर्ली स्क्रीनिंग करते हैं हम, कोई भी चीज को अर्ली डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये पता चला कि सबकॉन्शियस में अर्ली कोई भी बीमारी आती है, मतलब माइंड में बीमारियां पहले आती है, फिर ब्रेन में बीमारी आती है, फिर बॉडी में आती है। मतलब ओवरनाइट किसी को डायबिटीज या अर्थराइटिस या कैंसर नहीं होता, 3 से 6 महीने या 1 साल लग जाते हैं उसको बीमारी आने आने में करके। तो तब तक उसके पास पूरा समय होता है कि वो अपने आप को रिवाइव करे, वो अपने आप को रिकवर करे, वो अपने आप को क्योर कर सकता है करके। तो वो कैसे कर सकता है, इसका मैं आपको ये छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे ये सुपर कॉन्शियस माइंड दिखाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी एनर्जी डल है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वीक है, आपकी ऑरिक फील्ड बहुत वीक है, तो आप कॉस्मिक एनर्जीज ले सकते हो। आप यूनिवर्स में जो अबंडेंस के फॉर्म में ये सारी ब्रह्मांड में जो ऊर्जा शक्तियां होती है, वो योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, आप हीलिंग के थ्रू कैसे भी वो एनर्जीज को डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज आप सबको साइंस का लॉ पता है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो यहाँ पे भी यही होता है कि हम कॉस्मिक से पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, और हमारे अंदर जो भी फियर है, इनसिक्योरिटी, जेलसी है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। तो हम ये सारे अपने बच्चों को भी बीच में ऐसे कुछ साइलेंट मेडिटेशन सिखा सकते हैं, कुछ ब्रेथ मेडिटेशन सिखा सकते हैं। अब थोड़ा मैं और आपको आगे इसका डिटेल बताऊंगा
कि ये सुपर कॉन्शियस माइंड करता क्या है। मतलब अब ये साइंस जब हमने इसको आज ओपन किया है तो उसको अच्छे से समझते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये हमारी ब्रेथ की पैटर्न चेंज करता है। जो हम बीटा फ्रीक्वेंसी में हमारी ब्रेथ पैटर्न स्ट्रेस लेवल के वजह से, टेंशन के वजह से, स्ट्रेन के वजह से जो हम लेते हैं, मतलब बहुत फास्ट ब्रीथिंग लेते हैं। नॉर्मली हम लोग 1 मिनट में 12 से 15 बार सांसें लेते हैं, जबकि हम जब सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं तो 1 मिनट में हम 8 से 10 बार सांसें लेते हैं। तो हमारा ब्रेथ स्लो एंड डीप हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या फायदा है, इस डीप ब्रीथिंग का क्या फायदा है, या ये स्लो ब्रीथिंग का क्या फायदा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जब हम सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं तो होता क्या है, हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम जागरूक होते हैं, हम जागते हैं। हमारी उन सारे कमियों खामियों के बारे में, वॉट एवर वीकनेस वी हैव, we try to acknowledge them and then we start to work on them, and that is very important. नॉर्मली हमारे जो सेंसेशंस है, हम बाहर के लोगों के लिए ज्यादा यूज करते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये वस्तु बुरी है, मतलब अच्छी नहीं है, ऐसे करके। जबकि हमारी जो ब्रेन की जो सेंसेशनल कैपेसिटी है, वो अपने बॉडी को सेंस करने के लिए, अपने अंदर की जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें हैं उनको परखने के लिए है। तो बाहर के लिए हमें यूज नहीं करना है। तो जब हम सुपर कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्रेन में, और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो हम अपने अंदर सेंस कर पाते हैं कि कौन सी चीजें अच्छी है या कौन सी चीजें बुरी है, एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। जैसे किसी में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, किसी में इरिटेशन ज्यादा है, एंगर गुस्सा ज्यादा है, तो ये उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरा गुस्सा ऐसा है, और इस गुस्से के वजह से मुझे क्रैम्प्स आ गए, मेरे मसल्स स्पाज्म में चले गए, मुझे बैक एक शुरू हो गया, मुझे जॉइंट्स पेन शुरू हो गए। तो कॉज पता चलता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें कॉज को फाइंड आउट करना है कोई भी चीज का। और जैसे हम ये कॉज को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे बीटा फ्रीक्वेंसी में है, तो हम धीरे धीरे अल्फा फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। और अल्फा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है माइंड की जहां पे सब हमारी हार्मोनल एक्टिविटीज, हमारी ऑर्गेनिक एक्टिविटीज नॉर्मलाइज रहती है। तो जो लोग बीमार रहते हैं, जो लोग हमेशा कोई ना कोई बीमारी से उलझते रहते हैं, बिकॉज वो लोग बीटा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा हैं, उन्हें अपने ब्रेथ को स्लो डाउन करना पड़ेगा, अल्फा लेवल पे आना होगा करके। जैसे अल्फा पे आते हैं तो उनके सारे फंक्शनल परसेंटेज पैरामीटर्स फिर से नॉर्मल होना शुरू कर जाते हैं। किसी का हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, किसी का क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। अब मान लो कि किसी के पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं, मतलब किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है या थायराइड ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा लोग मुझे पूछते हैं। उस सिचुएशन में हमें थीटा लेवल की हीलिंग करनी चाहिए या थीटा लेवल के मेडिटेशंस करना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन प्रोटोकॉल होते हैं। इस थीटा लेवल पे हम बहुत कम समय रह सकते हैं, जैसे सोने से कुछ 1-2 मिनट पहले और जागने से 1-2 मिनट बाद। इस तरह से अगर किसी भी स्टूडेंट के सोने से पहले उसके माइंड में ये डाला जाए कि कल तुम 6 बजे उठते हो, कल तुम 6 बजे उठ के इतनी पढ़ाई करते हो, तुम योगा करते हो या तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम ये चैप्टर इजीली पढ़ पाते हो, तो उसके माइंड में हम डेटा को फीड करते हैं बिफोर ही गोज टू द बेड। मतलब वो सोने से पहले हम उसको फीड करते हैं। तो पूरी रात उसके सबकॉन्शियस में ये अलार्म बजते जाएगा कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा करके। लेकिन होता क्या है, रात को सोने से पहले हम उन सारी नेगेटिव चीजों को याद करते हुए सोते हैं, इसलिए हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो रिसर्च कहता है कि रात को सोने से पहले साइलेंट मेडिटेशन करो या फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो। जो भी आपके साथ बुरा पूरे दिन में हुआ है उसको क्लियर करो, उस सारे क्लटर्स को क्लियर करो, ताकि आपकी 6-8 घंटे की नींद अच्छी हो। मैं रात को 11-12 बजे सोता हूँ और सुबह रोज 3:15 बजे उठता हूँ। पिछले 20 साल से सिर्फ 3 घंटे की मेरी नींद इनफ होती है, बिकॉज मैं रात को सोने से पहले अपने माइंड में अलार्म लगाता हूँ। मुझे कभी मोबाइल में या कहीं घड़ी में अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं 3:18 को उठ जाता हूँ और फिर मेरी पहले योगा करता हूँ बॉडी लेवल पे, फिर माइंड लेवल पे मेडिटेशन करता हूँ,
फिर कुछ हीलिंग मॉडलिटीज में करता हूँ। तो आप लोग भी सोने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हुए सोइए। उसके बाद सुबह जब भी आपका बच्चा उठता है, कोई स्टूडेंट उठता है, उसके कान में आपको ये बोलना है कि आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा है, आज के दिन तेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, आज के दिन तू बहुत शार्प है, आज के दिन तेरा कंसंट्रेशन बहुत अमेजिंग है, और आज तूने एग्जाम में 95% स्कोर किए, जो भी है, आप उसको इस 1-2 मिनट के दरमियान में उसके कान में बोल सकते हो। मैं हमेशा अपने बेटा जैसा भी उठता है, तो उसे ये कहता हूँ सुबह उठते वक़्त कि तू बहुत अच्छा फुटबॉल चैंपियन है, तू स्टूडियस है, तू बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। तो ये इसके माइंड में चले जाता है और इस तरह से पूरे दिन की उसकी एक्टिविटी वैसे रहती है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द थीटा लेवल। अब आते हैं यहाँ पे डेल्टा लेवल पे, कि डेल्टा लेवल क्या है, ये बहुत कम लोगों ने हमें साइंस में समझाया। साइकोलॉजिकल जो हिप्नोथेरेपीज होती है वो थीटा लेवल पे होती है, डेल्टा लेवल पे हिप्नोथेरेपी नहीं होती है। अब डेल्टा लेवल पे होता क्या है, डेल्टा लेवल पे हम साइलेंस में चले जाते हैं, हम इतने डीपर लेवल पे चले जाते हैं जहां पे हम कोई भी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे किसी भी मतलब कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको मुझे डाउनलोड करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे कोई भी मंत्र को डाउनलोड करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे अगर कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, उसको डाउनलोड करना है तो मैं कर सकता हूँ। मुझे पास्ट लाइफ में भी जाना है तो मैं पिछले जन्म में जा सकता हूँ। ये डेल्टा लेवल पे पॉसिबल है करके। लेकिन हार्डली 10 लाख में से एक इंसान होता है जो डेल्टा लेवल पे जा सकता है। और जो लोग भी ऐसे डेल्टा लेवल पे गए हैं, उन्होंने ही शायद, मुझे लगता है, भगवत गीता लिखी है, उन्होंने ही शायद जैसे वाल्मीकि जैसे लोग थे, या कुछ लोगों ने कुरान लिखी है, बाइबल लिखी है, या जैनिज्म की फिलॉसफी लिखी है। तो ये सारे वही लोग हैं जो डेल्टा लेवल पे जाते हैं करके। बट इट इज पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट। इसके लिए एक हीलिंग मॉडलिटी हमने रिसर्च किया है, करुणा कर्म सोल एंड डीएनए हीलिंग। तो उस हीलिंग में हम अपने डीएनए पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे बच्चों के जो जीन्स होते हैं, बच्चों के जो डीएनए होते हैं, वो पेरेंटल डीएनए को रिजेंबल करते हैं। तो पेरेंट्स में अगर डायबिटीज होता है तो बच्चों को जुविनल डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। पेरेंट्स में किसी को फाइब्रॉइड सिस्ट होता है, ओबेसिटी होती है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं। तो हम आइदर उसको थीटा लेवल पे रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या डेल्टा लेवल पे और भी ज्यादा फास्ट उसको हम क्लियर कर सकते हैं, उसके डीएनए के पैटर्न के स्ट्रेन को ठीक कर सकते हैं। और ये हमने बहुत रिसर्च किया है, मतलब 2 लाख पेशेंट के ऊपर ये सब रिसर्च किया गया है। हमने 8,000 कैंसर के पेशेंट को इसी तरह से उनको हमने क्योर किया है करके। तो इस तरह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे होती है। जैसा बीटा फ्रीक्वेंसी 15 से 18 हर्ट्ज की होती है कॉन्शियस माइंड की। अल्फा लेवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 से 12 की होती है। थीटा लेवल की 4 से 8 होती है, और डेल्टा लेवल की 0 से 4 तक होती है। तो जो लोग समाधि में जाते हैं, जो लोग ट्रांस में जाते हैं, वो लोग डेल्टा लेवल की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, इसलिए वो इतने इजीली जा सकते हैं करके। जैसे हमने बुद्धा के बारे में या महावीर के बारे में सुना था कि वो लोग एनलाइटन हो गए या उनको निर्वाणा मोक्ष मिला ओनली बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ लेट अस शिफ्ट टू द लास्ट चैप्टर, एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी। आप सभी लोगों को पता है कि एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। मैं थोड़ा बेसिक से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जो रिसर्च हमने किया है उसके बारे में मैं यहाँ पे समझाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर्ड एनर्जी, काइनेटिक का मतलब जो हमने स्टोर किया है उसको हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब हम सारे लोग पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो काइनेटिक हमारी चॉइस होती है, चॉइस का मतलब होता है कि आउटपुट कैसा देना चाहते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में आउटपुट देते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में आउटपुट देते हैं, कुछ लोग डांस में आउटपुट देते हैं, कुछ लोग स्विमिंग में आउटपुट देते हैं, कुछ लोग एथलेटिक्स में आउटपुट देते हैं। तो ये आउटपुट हमारी चॉइस होती है। इनपुट का जरिया मैक्सिमम सबका सेम होता है, क्योंकि हम डाइट लेते हैं या हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कुछ नॉलेज लेते हैं, ये सारा इनपुट का जरिया है। लेकिन आउटपुट बहुत वेरिएबिलिटी होती है, हमारी चॉइस होती है कि हमें किस तरह से हमें उसको बाहर निकालना है करके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इनपुट मेडिकल एजुकेशन था। मैंने पहले 5.5 साल का मैंने पहले बीएचएमएस किया। उसके बाद में मैंने शॉर्ट कोर्स ऑफ गायनेकोलॉजी की। उसके बाद में मैंने पेडियाट्रिशियन का सीसीएच कोर्स किया वाडिया हॉस्पिटल में।
ये मेरे सारे इनपुट्स थे। आउटपुट मेरा क्या था कि पहले मैंने मेडिकल प्रैक्टिस को आउटपुट किया 3 साल के लिए, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे रिसर्च में मैंने आउटपुट किया। सो आउटपुट का आपका चॉइस बहुत वाइज होना चाहिए, बिकॉज ये आपकी एनर्जी ड्रेन भी कर सकता है और ये आपको मतलब फेमस भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार हमारे जो आउटपुट्स होते हैं ना वो गलत होते हैं, जैसे एंगर बस्टिंग है, फियर बस्टिंग है, तो ये गलत आउटपुट देते हैं हम, और उसके वजह से गलत वाइब्रेशन, गलत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब कोई चीज गलत बाहर निकलती है तो लॉज ऑफ नेचर है, वॉट एवर यू थ्रो इन द यूनिवर्स दैट विल कम बैक अगेन इन योर लाइफ। तो सोच समझ के कोई भी चीज को बाहर फेंकिए। जैसे ये सारे जो मास मीडिया वाले जो लोग हैं, ये लोग आजकल हैशटैग लगाते हैं। मतलब कोई भी एक मूवी डाउनलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, इमेज डाउनलोड करते हैं, उसके आगे हैशटैग लगाते हैं। हैशटैग पर्सन का नाम होता है या हैशटैग कुछ लगाते हैं, तो उसके क्लाउड में जाके वो सेव हो जाता है। तो हमारा भी, अगर हम गुस्से वाले हैं, एंगर हमारा है, तो हम हैशटैग एंगर में चले जाते हैं। हमारे में फियर है तो हैशटैग फियर में चले जाता है। तो उस फियर का जो क्लाउड है, जो यूनिवर्सल क्लाउड है, उसमें हम सबमिट हो जाते हैं। तो हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न में आ जाते हैं। तो कभी भी हम किसी की बुराइयां करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि भाई नेता चोर है, ये देश में तो भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो मैं हैशटैग भ्रष्टाचार में जाता हूँ या हैशटैग चोर में चले जाता हूँ। तो ऐसी नेगेटिव बातों को आउटपुट नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, हम ये सिखाते हैं कि हमारा लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो भी बच्चों के साथ जो टोनैलिटी में बात करते हैं, सॉफ्ट टोनैलिटी में बात करते हैं, तो उस तरह से बच्चा स्टोर करेगा, स्टूडेंट वैसे स्टोर करेगा। हम हार्श टोनैलिटी में आउटपुट देते हैं, तो वो हार्शली या एग्रेसिवली उसको स्टोर करेगा करके। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर, मास्टर, गुरु, कि वो किस तरह से आउटपुट अपने फॉलोवर्स को या स्टूडेंट्स को देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वो इनपुट लेते हैं बच्चे, वैसे ही मैंने ग्राफोलॉजी में 8 साल का रिसर्च किया है हैंडराइटिंग एनालिसिस में। वो बच्चों का जो AEIOU, ये जो वोवल्स है, उसमें ज्यादा दिखाई देता है। A स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, I स्टैंड्स फॉर द फायर एलिमेंट, के बच्चे में फायर कितना है, E स्टैंड्स फॉर द इमोशन एंड वो अर्थ से कितना कनेक्टेड है, O स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेशन एंड U स्टैंड्स फॉर द वुड, उसमें एयर एलिमेंट कितना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना कि बच्चे जो लिखते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रेसफुली लिखते हैं, कुछ लोग बहुत रिलैक्सली लिखते हैं। ये ऑल डिपेंड्स अपॉन टीचर ने उनके अंदर कंटेंट कैसे डाला है। मतलब साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स है, लेसन्स है, वो बच्चों के अंदर किस तरह से डाला है। प्यार से डाला है, सॉफ्ट टोनैलिटी से डाला है, हार्ड टोनैलिटी से डाला है, हार्शली डाला है, एग्रेशन से डाला है, इरिटेशन से डाला है, फियरली डाला है, इनसिक्योरिटी से डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो ये हमें बहुत समझने की कोशिश करनी है, राइट। सो ये होता है यहाँ पे। अब जो चैप्टर में समझा रहा हूँ, दैट इज द माइंड एनर्जी। जो आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। जो आपका आउटपुट है, वही वापस आपका इनपुट होता है। तो बीच का जो पार्ट है, ये हमारा चॉइस होता है कि हम उसको ऐसे ही रखना चाहते हैं या हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। काफी बार हम कहते हैं, नहीं मुझे तो बचपन से ही गुस्सा आता है, नहीं मुझे तो बचपन से ही छिपकली का, कॉकरोच का डर है। तो क्या उस डर को हम रखना चाहते हैं या उस डर को हम निकालना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगेन यहाँ पे यही फ्रीक्वेंसी की मैंने चार्ट बताए हैं कि थीटा लेवल पे हम कोई भी चीज को निकाल सकते हैं और कोई भी चीज का हम रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चे लोग आजकल एडिक्टेड होते हैं, मोबाइल से एडिक्टेड होते हैं। कुछ मतलब कॉलेज के बच्चे लोग स्मोकिंग, अल्कोहल के एडिक्टेड होते हैं। हम उनके सबकॉन्शियस में उनका रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। हम उनके सबकॉन्शियस में कंटिन्यूसली, साइलेंटली ये थॉट्स डाल सकते हैं कि तुमने इसको छोड़ दिया है, तुम इससे फ्री हो गए हो। मतलब एंड रिजल्ट को जीपीएस के जैसे डालना है। ऐसे नहीं बोलना है कि तुमने छोड़ा है या तुम छोड़ दोगे या तुम ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो भी आपको एंड रिजल्ट चाहिए, कि भाई आपको चाहिए आपका स्टूडेंट 98% स्कोर करे, तो आप उसको रोज ये वाइब्रेशंस दे सकते हो।
और जैसे उसके सबकॉन्शियस में ये जाएगा वो 98% का आउटपुट देगा करके, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स उल्टा करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अरे तू तो बुद्धू है, तुझे तो अक्कल नहीं है, तू तो पढ़ाई नहीं करता है, तू तो चपरासी बनेगा, तू तो ये सिक्योरिटी वॉचमैन के जैसे बनने वाला है। मतलब बच्चों का जो सबकॉन्शियस है, जो हमेशा 24/7 ओपन रहता है, हम उसके सबकॉन्शियस में ऐसी सारी बातें डालते हैं। और कॉन्शियसली हम ये कहते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे वकील बनना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है। हम कॉन्शियसली 18% माइंड को ये बोलते हैं, और 80% के माइंड को हम गलत नेगेटिवली फीड करती है कि मुझे नहीं लगता तू लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो सकता है। कि और दो चार एग्जाम्पल भी देते थे, तेरे कजिन भी ऐसा ही है, वो डिप्रेशन में चला गया, वो बंदा देख वो सुसाइड कर दिया। और इस तरह से फिर वो बच्चा क्या होता है, ज्यादा बीटा फ्रीक्वेंसी में रहता है, तो उसे दिन भर मोबाइल को ऑपरेट करने का मजा आता है, बिकॉज उसकी बीटा फ्रीक्वेंसी और मोबाइल की बीटा फ्रीक्वेंसी ये मैच होती है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब बच्चे को अगर आपको मोबाइल से बाहर निकालना है तो उसको बीटा से अल्फा में डालना पड़ेगा, तब वो उस चीजों से बाहर आ पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी। वो मतलब जैसे हम वर्कॉलिक होते हैं, वो लोग मोबाइल के एडिक्टेड होते हैं करके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम और एक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपनी पीरियोडिकली पैटर्न तोड़नी है, सबकी पैटर्न तोड़नी है, मतलब हमारी अपनी भी पर्सनल पैटर्न तोड़नी है, सोने उठने की, खाने पीने की, सोचने की पैटर्न है तोड़नी है करके। अब क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आता है, हम अपनी पैटर्न तोड़े कैसे। आपको पता है हिंदू में एक बहुत कॉमन मंत्र है जिसको आपने सुना होगा, ओम नमः शिवाय करके। तो ये ओम नमः शिवाय, ये 5 वर्ड्स हैं, और ये 5 वर्ड्स 5 एलिमेंट से जुड़े हैं। और ये जब हम चैंट करते हैं तो हम अपनी पैटर्न को तोड़ सकते हैं। हम अपने जो भी हमारी सोच है या हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज हैं, हम उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अगर हम हिंदू मंत्र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम और कोई रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए मंत्र क्या होगा? हमारे लिए मंत्र सिंपल है, कैंसल कैंसल कैंसल। ये 3 बार हमें बोलना है, कोई भी चीज जो हमें नहीं चाहिए। बिकॉज 3 बार बोलने से कॉन्शियस माइंड से निकल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाएगा, और अनकॉन्शियस माइंड से भी निकल जाएगा। ये 3 माइंड से कोई भी चीजें निकलनी है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है? ये मैं आपको बताता हूं, आज तक वेस्टर्न साइंस ने कभी अनकॉन्शियस माइंड पे रिसर्च नहीं किया। वेस्टर्न साइंस ने सिर्फ कॉन्शियस सबकॉन्शियस इस 2 ही माइंड पे रिसर्च किया है। हम ईस्टर्न साइंस वाले ने सुपर कॉन्शियस माइंड पे भी रिसर्च किया है और अनकॉन्शियस माइंड पे भी रिसर्च किया है। तो सुपर कॉन्शियस की तो मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब मैं फाइनली आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है। ये वो माइंड है 30-40% जो हम पिछले जन्मों से लेके आए हैं करके। फॉर एग्जाम्पल, कि पिछले जन्म में हमारी डेथ एक्सीडेंट से हुई, या ड्राउनिंग से हुई, या किसी के मर्डर के वजह से हुई, तो ये सारी अनकॉन्शियस माइंड में हमारी प्री लोडेड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ये आईपॉड टच है, इस आईपॉड टच में एप्पल वालों ने पहले से कुछ सॉफ्टवेयर को इनबिल्ट रखा है, इसको मैं निकाल नहीं सकता हूं करके। तो ये हमारे ब्रेन में भी कुछ अनकॉन्शियस माइंड है, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट आती है। तो काफी बार हम कहते हैं अरे इसके माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर ये ऐसा क्यों बिहेव करता है? इसके माँ बाप में तो सारे मतलब अच्छे एजुकेटेड लोग हैं या अच्छे संस्कारिक लोग हैं, ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है? मतलब ये क्यों एडिक्टेड हो गया, या झूठ बोल रहा है, या चोरी कर रहा है? बिलीव मी, ये सारे अनकॉन्शियस माइंड से आया है। इसके पेरेंट्स के डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट्स के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट्स के जीन से कोई लेना देना नहीं है। ये अनकॉन्शियस माइंड से आया हुआ है, ये कुछ पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड है। तो मैंने जब 3,500 लोगों पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का रिसर्च किया 2011 से लेके अभी तक 10 साल में मैंने जो रिसर्च किया, उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले ह्यूमन लाइफ से पहले एनिमल लाइफ में रह चुके हैं, एनिमल लाइफ से पहले हम प्लांट लाइफ में रह चुके हैं, प्लांट लाइफ में रहने से पहले हम मिनरल लाइफ में रह चुके हैं। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये सारे अलग अलग जो स्टेट ऑफ द लाइफ है उसकी इम्प्रिंट्स आज भी हमारे अंदर है करके। तो आपके अंदर, किसी के अंदर काऊ की इम्प्रिंट्स है, किसी के अंदर डॉग की इम्प्रिंट्स है, किसी के अंदर लायन की, टाइगर की इम्प्रिंट्स है। तो
तो आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका नेचर भी उसी तरह से आउटपुट होता है करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपको यहाँ समझना कि पिछले जन्म से भी कुछ हम लेके आए। जब मैंने जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पेरेंट्स में कभी-कभी डायबिटीज नहीं होता। पिछले जन्म में जहां वो डायबिटीज से मरा था, इस न्यू लाइफ में उसने वापस उसी डायबिटीज से उसका रीबर्थ हुआ है करके। तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे बॉर्न हुए या फिजिकली हैंडीकैप बॉर्न हुए, मैंने उन 2000 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया। तब मुझे पता चला कि ये बच्चे पिछले जन्म से ही कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक थे और उन्होंने इस तरह से जन्म दिया है करके, मतलब इस तरह से उनका जन्म हुआ है करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उन बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड से भी कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि अनकॉन्शियस माइंड से हम चीजों को कैसे निकालें। ये ना अल्फा माइंड निकाल सकता है ना थीटा माइंड निकाल सकता है, ये सिर्फ डेल्टा माइंड ही है जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है करके। मतलब किसी का पिछले जन्म में ड्राउनिंग से मरना, डूब के मरना और इस लाइफ में वो स्विमिंग नहीं कर रहा है, या पिछले जन्म में रोड एक्सीडेंट से मरना, इस लाइफ में वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है, तो हम उसको डेल्टा लेवल से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है करके। सो आप यहाँ देखते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्ट सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसको ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है, राइट। सो हमारे जितने भी गोल्स हैं, विशेष हैं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने ही सिर्फ हमारे अंदर कुछ डाले हैं, हम पिछले लाइफ से भी कुछ डिसाइड किया है। तो मैंने एक चैप्टर के ऊपर रिसर्च किया, उसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। लाइफ बिटवीन लाइफ हम 72 आवर्स रहते हैं और 72 आवर्स में हम प्योर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और उस वक्त जो भी हम डिसाइड करते हैं हम उसी तरह से हमारी नेक्स्ट लाइफ में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और ये चीजों को हम उसको सेंस करते हैं, वो सिग्नल्स को हम ब्रेन में पास करते हैं और ब्रेन से फिर वो बॉडी में जाता है और हम उस प्रकार के एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली में सभी लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई, मेरे पापा, ये सारे क्रिकेट के फैन हैं। लेकिन मेरा बेटा फुटबॉल का बहुत बड़ा चैंपियन है करके। तो ये पास्ट लाइफ से कोई वो फाइल्स लेके आया है, वो कुछ अपनी इच्छाएं लेके आया है और वो उसी के वजह से उसमें आगे जा रहा है। हमें तो एबीसीडी भी फुटबॉल के बारे में पता नहीं करके, लेकिन उसको वो पूरा नॉलेज है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे बेस्ट प्लेयर है, क्या कौन सी मैच कहाँ चल रही है, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो आप भी समझने की कोशिश करो, जो बच्चों को आप पढ़ाते हो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ अगर ऐसी अनयूजुअल डिजायर्स हैं, तो प्लीज उसके ऊपर उसको वर्क करने के लिए लगाइए, ताकि वो फिर पूरी तरह से अच्छी चीजों पे फोकस कर पाए। जब तक वो क्लटर नहीं निकलेगा अनवांटेड, जैसे कुछ लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं ड्रग्स का, कुछ लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं क्राइम का, तो डेफिनेटली वो बाय डिफॉल्ट वो क्राइम का एक्सपीरियंस लेंगे, चोरी का या झूठ बोलने का, ये सारे एक्सपीरियंस लेने वाले। तो हमें उनके अनकॉन्शियस माइंड से कुछ चीजें निकालनी है जो पास्ट लाइफ से लेके आया है, कुछ हमें सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी है जो प्रेजेंट लाइफ से उसने एक्नॉलेज किया है या उसके पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम के वजह से उसके अंदर आई है। और धीरे धीरे आप उसके ब्रेन की एक्टिविटी में चेंजेस देखोगे, उसकी बॉडी की एक्टिविटीज में चेंजेस देखोगे, उसके आउटपुट्स में, उसके रिजल्ट्स में आप चेंजेस देखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके, राइट। तो जो लोग कामयाब नहीं है, जो लोग अनसक्सेसफुल है लाइफ में, उसका रीजन क्या है? अब लास्टली हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन सिंपल है, देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द three minds: controversy between conscious and subconscious, controversy between conscious and unconscious, controversy between subconscious and unconscious। ये तीन प्रकार के जो माइंड है ना, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। मतलब एक माइंड कहता है मुझे ये इंजीनियर बनना है, दूसरा कहता है नहीं 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 मुझे तो जॉब मतलब मुझे तो पेरेंट्स का बिजनेस संभालना है करके। तो ये जो कंफ्यूजन हमारा होता है वो दो माइंड के वजह से होता है। तो हमें क्या करना है, उसको एक अलाइनमेंट में लाना है। मतलब थ्रू हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम माइंड को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो एक ही जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट बाहर निकलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे रिसर्च के हिसाब से 93% बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। सिर्फ 7% स्टूडेंट है इस दुनिया में जो क्लियर कट है कि इन्हें क्या करना है। ये बिल्कुल भटकते नहीं है करके, इनका पिक्चर क्लियर है, ये अलाइंड है टू देयर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। तो हमें
लास्टली ये मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये पूरा एक समराइज किया हुआ है मेरा ये स्लाइड, कि पहले हमारे कॉन्शियस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम चीजों को अंदर लेते हैं, सेंसेस से हम अंदर लेते हैं, फिर हम उसको सेकेंडली एनालिसिस करते हैं, फिर या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। फोर्थ, हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। और जब हम उसको स्टोर करते हैं तो न्यूरो के थ्रू ये हमारा कंडक्शन होता है। और सिक्स्थ है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करता है, एंड सेवेंथ है, बॉडी उसको रिएक्शन करता है। तो ये 7 स्टेप्स है जो हर इंसान के फिनोमिनली होते रहता है। तो हमें ये 7 स्टेप्स में ये देखना है कि कहाँ पे हमारी गलती है। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ गलत चीजें ले रहे हैं, या हमारा एनालिसिस गलत है। बिकॉज अगर एनालिसिस गलत है तो आपका जजमेंटल पार्ट भी गलत है, और अगर जजमेंटल गलत है तो आपने जो गलत चीज को एक्सेप्ट किया है वही चीजों को आप अपनी लाइफ में उतारने वाले हो करके। सो हमेशा कहते हैं प्लीज बी नॉन जजमेंटल। मतलब ये लेक्चर सुनने के आधे घंटे पहले आपका माइंडसेट अलग था, अब इस हाफ एन आवर में आपका माइंडसेट अलग हो गया है। मतलब अगर आपका माइंड इतना जल्दी पॉजिटिव हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमें किसी को भी परमानेंटली जजमेंट नहीं करना है, ना स्टूडेंट को करना है, ना अपने आप का कोई जजमेंट पास करना है, ना हमारे किसी भी फैमिली मेंबर का कोई जजमेंट हमें पास करना है करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है करके। यहाँ कुछ मैं आपको जो रिसर्च है, जो ऑरा का रिसर्च है, इसके मैं कुछ आपको स्लाइड्स बताना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे इतने सारे रिसर्च हमने किए हैं। ये यहाँ पे, या उसके पहले थोड़ा ये मुझे चैप्टर थोड़ा क्लियर करना है, सॉरी। जो बेस ऑफ द एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उस रिसर्च के मुताबिक 7% वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है, 38% टोनैलिटी का इंपॉर्टेंस है, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है। अब इस लॉकडाउन पीरियड में क्या हो गया, आप लोग स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए कि बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं, वो सुन रहा है कि नहीं, उसने वीडियो ऑन रखा है, ऑफ रखा है। तो आपको इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। उसके बाद बच्चों की, स्टूडेंट की टोनैलिटी इंपॉर्टेंट है और टीचर की भी टोनैलिटी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि हम सॉफ्टली बात करते हैं या हार्शली बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स का भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है। जो शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वही शब्द बाहर निकलते हैं करके, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं लास्ट की जो 3 चीजों पे, जो कि उसका विजुअलाइजेशन कैसा है, बच्चा कैसे इमेजेस को ग्रैब करता है। आप जो भी सिखाते हो, मैथमेटिकल चीजें सिखाते हो, या फिजिक्स की कोई फॉर्मूला है, या केमिस्ट्री की फॉर्मूलाज है, या बायोलॉजिकल कोई डायग्राम्स है, ये बच्चा विजुअलाइज कितना परसेंटेज कर पाता है। वो 30% कर रहा है, 60% कर रहा है, 90% कर रहा है। जिसके अंदर भी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो पूरा का पूरा आपके लिखे गए बोर्ड पे वो उसको ग्रैब कर लेगा, उसकी वो इमेज को स्क्रीनशॉट ले लेगा करके। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट है, उसका ऑडिटरी कैसा है, वो आपकी बातें कितने परसेंटेज ध्यान से सुनता है। बीच बीच में सुनते सुनते वो अपने ख्यालों में खो जाता है, या पहले जो भी आपने बताया है वो उसी को एनालिसिस करने में लग जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फेज लैग। मतलब आपने कोई एक सेंटेंस बताया और उसके बाद वो सेंटेंस के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब आपने दूसरा सेंटेंस बताया तब तक वो सोच में डूब गया था, तो उसने सेकंड सेंटेंस को ध्यान से नहीं सुना, तो इसलिए उसको रिवीजन की जरूरत होती है करके, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली किनेस्थेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फील क्या करता है, मतलब वो आपके वाइब्रेशंस को कैसे फील करता है। अगर बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल है तो वो आपके सारे सेशंस अटेंड करेगा, खुशी से अटेंड करेगा, जॉयफुली अटेंड करेगा, हैप्पीली अटेंड करेगा। लेकिन अगर आपकी जो वाइब्स है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, उसको अगर अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो वीडियो ऑफ करके अपनी कुछ अलग ही एक्टिविटी में लगा रहेगा, अपनी म्यूजिक सुनता रहेगा, कोई वीडियो अलग ही देखता रहेगा, या खाने में उलझा रहेगा, इस तरह से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हर बच्चों का विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक टेस्ट करते हैं। उसके साथ जब हम 1-to-1 जब भी मिलते हैं ये करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी ये लॉकडाउन पीरियड में हम ये बच्चों का ये नहीं कर पाए, इसलिए हम उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितना उसके वजह से अफेक्ट हुआ है करके, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि एनएलपी देखो
कैसे बिहेवियरल पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है करके, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ये जो एनर्जीज है, ये जो फियर फैक्टर एनर्जीज है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक साइंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे सारे जो विचार है, थॉट्स है, ये सारे गैशियस लेवल के होते हैं। और जब हम सांस लेते हैं, ब्रेथ अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो जो भी गैशियस थॉट है उसको वो एम्पलीफाई करता है। मतलब अगर फियर के थॉट्स है, फियर के इमोशंस है, तो ऑक्सीजन उसको एम्पलीफाई करेगा। हैप्पीनेस के फीलिंग्स है या कोई भी थॉट्स हैं, तो ऑक्सीजन उसको एम्पलीफाई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो कैरी करते हो, ऑक्सीजन उसी को बस्ट आउट करता है, उसी को वो एम्पलीफिकेशन करता है। तो इनपुट आपकी चॉइस है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी बात, आपका जो इनहेलेशन है वो ज्यादा कितने समय तक है, मतलब आप कितने समय तक ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज साइंस के रिसर्च के हिसाब से 30 से 40% जो ऑक्सीजन आप लेते हो उसमें से वो ब्रेन में चले जाता है, बाकी के परसेंटेज वो बॉडी में चले जाता है। तो मतलब 1/3 या 1/4% आपका ब्रेन आपका ऑक्सीजन को होल्ड करता है करके। तो ब्रेन में 72 एरियाज होती है जो अलग अलग ऑर्गन, सिस्टम्स, हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो उस ब्रेन में अगर आपका कोई भी गलत थॉट है, गलत इमोशंस है, तो पूरे टाइम ऑक्सीजन उसको फीड करते रहेगा। और जो गलत फीड करेगा वही न्यूरोट्रांसमिशन से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो नीचे सेडिमेंट होते जाएगा। तो जो हमें फाइब्रॉइड होते हैं, सिस्ट होते हैं, ये सारी सेडिमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं जो गैशियस से पहले लिक्विड में गए, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में गए, उसके बाद ब्लड में गए, और उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर में चले गए, राइट। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ओवरनाइट कोई बीमारी नहीं होती है। पहले गैशियस लेवल पे बीमारियां होती है, फिर वो लिक्विड लेवल पे जाती है, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर हमने लिम्फेटिक सिस्टम को, इम्यूनिटी को ठीक नहीं किया तो वो ब्लड केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करता है। अगर हमने ब्लड के पैरामीटर्स को ठीक नहीं किया तो वो बॉडी के स्ट्रक्चरल पार्ट को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा करके। तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास बॉडी करेक्शन के लिए जाते हैं, शरीर के बीमारियों के लिए जाते हैं। हम गैशियस लेवल की ट्रीटमेंट नहीं करते, हम सॉलिड लेवल की ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत गलत है। और यही रीजन की वजह से मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी या कम कर दी, और मैं रिसर्च में ज्यादा हूं करके। बिकॉज मैं मानता हूं कि कॉज निकाल दिया तो इफेक्ट निकल जाता है। तो कॉज यही होता है, हमारे कुछ फियर्स होते हैं, हमारी जेलसी, हमारी हेट्रेड, ये सारे कारण होते हैं। और जब हम कारण निकाल देते हैं तो मुझे लगता है हमारा इफेक्ट हमेशा के लिए निकल जाता है। सो आई होप कि ये आपको जो टॉक था ये बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये कुछ टेक्निक्स है जो अभी तो मैं आपको नहीं करवा सकता हूँ, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स है, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस है। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको सही में अगर इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आई विल बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन टू सर्व यू पीपल। बिकॉज आप लोग इतनी ह्यूमन सर्विस करते हो, इतने बच्चों का पूरा फ्यूचर आप डिसाइड करते हो कि किस तरह से बच्चों का हम भविष्य डिजाइन करें। सॉरी, या, तो सॉरी इट गॉट डिस्कनेक्ट। हेलो, the getting echo. No, no, presentation I have stopped. Yeah, yeah, yeah. Just I want to stop the echo part. Okay, 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 okay. The just a minute. वो है ना, उन जो ऑडियो बंद कर। Hello. Yeah. Okay. Yeah. So I hope the concept was very clear to you all people. If there's any question answers, we can go through it. Uh, exactly. Exactly. Yeah.
राइट, राइट। या एग्जैक्टली, 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 या exactly. So for the beginner, what I did in 1997, when I was a very beginner in this subject, I started analyzing everything, whatever activities, whatever my thought patterns, I used to get analyzed. Then I came to know that whatever belief system I am carrying, either because of my parents or my medical education. So slowly I started changing those belief system. Then I could find out whatever changes were coming in my life and what level of progress I was making, and that made me that I should become this like a motivational trainer or inspirational person, and I should work on my spiritual research. So that way all we people actually we should analyze ourselves more, because all these students what we are representing, they are our either unhealed part, or it's a challenge to us that how we mold them to a positivity, है ना? तो जब हम अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने बच्चों में भी फ़र्क देखते हैं करके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ हमारे दोनों की एनर्जी है, ऑरा है, वो मैच होनी चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे काफ़ी बार लाइफ पार्टनर के बीच में फ्रिक्शन होता है, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, बिकॉज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैच नहीं होती है करके। तो हार्मोनी लानी है। राइट, तो बिगिनर्स को पहले हार्मोनी के लिए ये करना होगा, दे हैव टू वर्क ऑन सेल्फ एनालिसिस कि हाउ मच व्हाट इज माय कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ माय कंसंट्रेशन, कैपेसिटी टू एड्रेस द पीपल, कि मैं कितने घंटे लोगों की बातें सुन सकता हूँ और हैप्पीली सुन सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर इरिटेशन क्रिएट ना हो ऐसे करके। बिकॉज कुछ कुछ पेशेंट्स मेरे साथ 1.5 2 2 घंटा बैठते हैं और मैं बहुत प्यार से अच्छे से सुनता हूँ, तो जाने से पहले कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो बीमारी निकल गई, बिकॉज आई अलाउड देम टू इमिटेट, मतलब उनका डिक्लटर करने के लिए मैंने अलाउड किया। तो आजकल का प्रॉब्लम क्या होता है, हम स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे सकते हैं, कभी कभी हम अपने लाइफ में भी अपने आप को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जो बीटा फ्रीक्वेंसी में है। तो अगर हम जैसे रात को सोने के पहले की भी मैंने कुछ एक्सरसाइज, आई टोल्ड यू दैट बिफोर द स्लीप इफ यू कैन मेक अवर सेल्फ समथिंग वेरी पॉजिटिवली एंड वी कैन मेक सम फॉरगिवनेस मेडिटेशन, लाइक आपने जिनके साथ भी पूरे दिन में कुछ नेगेटिवली इंटरेक्ट किया या उन्होंने आपके साथ किया, प्लीज ट्राई टू फॉरगिव देम, बिकॉज पूरी रात सबकॉन्शियस में वही डेटा चलते रहेगा, है ना? और मॉर्निंग में फिर अपने आप को फिर से एक फ्रेशन अप हो जाओ, वाओ सुपर्ब डे, आज तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ एंड थैंक्स टू गॉड कि चलो आज मैं जिंदा हूँ। कितने लोग तो रात को ही मर गए, उठ भी नहीं पाए ड्यू टू हार्ट अटैक और ब्रेथलेसनेस वॉट एवर। सो फर्स्ट थैंक्स टू द गॉड। तो मैं सुबह पहले उठता हूँ, मैं अपने आप को टच करता हूँ और मैं कहता हूँ वाओ, आज फिर से एक दिन मिल गया मुझे कुछ तो करने के लिए। सो आई एम डूइंग माई सेल्फ मोटिवेशनल प्रोसेस, बिकॉज मैं दूसरों के मोटिवेशन पे कब तक जीऊंगा। आई हैव टू बी अ सेल्फ मोटिवेटर, आई हैव टू बी इंस्पिरेशनल फॉर अदर पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बिगिनर के लिए वो ठीक है। उसके बाद वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे स्पीकर्स के यूट्यूब्स अवेलेबल हैं। मैं भी दिन में 7 8 लोगों के सुनता हूँ। मेरे अपने भी कुछ साई करुणा मिशन चैनल है, मेरी वेबसाइट भी है साई करुणा मिशन .org या drudesha.com। उस पे 650 से ज्यादा टॉक्स हैं। मैंने जेल में भी गया था, मैंने 2000 प्रिजनर्स को मैंने ये टॉक दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि 700 प्रिजनर्स बाहर आ गए, मतलब जेलर ने उन्हें छोड़ दिया। मैं देहरादून की जेल में वेरी फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, अभी मेरी ये 6th विजिट होगी नेक्स्ट ये कमिंग मंथ में। तो मैं इवन हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, एनजीओस में जाता हूँ, इवन आई गो टू रेड लाइट एरियाज, आई गो टू डिफरेंट डिफरेंट सीनियर सिटीजन ऑर्फेन्स। मैं सीनियर सिटीजन पे एक्चुअली ज्यादा काम करता हूँ, मेरे दूरदर्शन पे टॉक्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज आई वांट टू रीप्रोग्रामिंग देयर माइंड। जो वो लोग गिले शिकवा अपने बच्चों के लिए, बहू के लिए, पोते पोतियों के लिए रखा है सीनियर सिटीजन ने, तो उसके वजह से वो अफेक्ट होते हैं, वो कर्ज करते हैं। तो आई टेल देम प्लीज सब कुछ अभी फॉर्मेट कर दो, एक नई लाइफ जीने की कोशिश करो, एंड पीपल दे बिकम हैप्पी, उनके सारे जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल हो जाते हैं। सो आई थिंक सो ईच एंड एवरी पर्सन। हाँ, 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 एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली,
राइट 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 राइट, एग्जैक्टली। नहीं नहीं, वो तो 70-80% है। मैं तो ज्यादा परसेंटेज में कहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये वो लोग हैं, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन, मतलब उन्हें कंप्लेन करना अच्छा लगता है, उन्हें ठीक होना अच्छा नहीं लगता, और उन्हें सिंपैथी मिलती है, दे आर अटेंशन सीकर्स। समझ में, अरे देखो देखो मेरा शुगर बढ़ गया, अरे देखो, और वो खाते भी गुलाब जामुन, ऐसा है करके। तो नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज उन्हें लगता है चलो इस बहाने चार आदमी ने मुझे पूछा, जब मैं ठीक था तो कोई पूछता ही नहीं मुझे, है ना। तो दे आर इन द कंफर्ट जोन। इंडिया में ऐसा है, जब मैं अब्रॉड जाता हूँ, मैं 30 कंट्रीज में जाके रिसर्च करता हूँ, वो लोग इमीडिएटली मुझे फॉलो करते हैं, चाहे वो यूएस के लोग हैं, यूके के हैं, या दुबई सिंगापुर के, वो रिलीजन से भी मतलब कोई उनको लेना देना नहीं। इमीडिएटली दे टेक द एक्शन एंड दे डू अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर। इंडिया में क्या होता है, हमने बचपन से अपने पेरेंट्स को सफर होते हुए देखा है, तो हमें लगता है सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। सो ये बहुत गलत चीज है। और जब हमारे बच्चे देखते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स भी शायद कोई इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं है, अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये थोड़ा एक इश्यू हो जाता है यहाँ पे। तो हमें थोड़े उन्हें अलग से ट्रेन करना पड़ता है कि आप इवॉल्व सोल्ड हो। मैं इन बच्चों को इंडिगो चाइल्ड कहता हूँ। इंडिगो चाइल्ड का मतलब कि ये लोग का जो कॉन्शियसनेस है वो आग्नेय चक्र पे यहाँ पे आया होता है। ये एनालिटिक अच्छा होते हैं, ये लोग के ब्रेकअप्स भी जल्दी होते हैं, वापस वो रिलेशनशिप पे टाई अप हो जाते हैं, ये लोग एडिक्टेड भी जल्दी होते हैं और डी एडिक्टेड भी जल्दी हो जाते हैं। राइट, तो ये सारे इंडिगो बच्चे हैं आजकल के, हमसे तो ज्यादा इवॉल्व है। हमने ये एज में ये एप्पल फोन, ये सारे गैजेट्स को संभाला है, ये तो इनका पैदाश ही उसी से था, मतलब डेफिनेटली ये इवॉल्व सोल है। लेकिन ये टेक्निकल इवॉल्व है, कहने का मतलब है ना। कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं है इनका, कॉन्शियस माइंड इवॉल्व है। राइट। तो कहीं ना, और वो हमारे धर्मों की परंपराओं को नहीं मानेंगे, बिकॉज ये कॉन्शियस माइंड से चलते हैं। इनको आंसर चाहिए, मैं आरती क्यों करूं, मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं मूर्ति को क्यों मानूं, ये मंत्र चैंट क्यों करूं। तो मैं जितना भी साइंस पे रिसर्च करता हूं, मैं बच्चों को स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके बताता हूं कि भाई इससे आपका एनर्जी शिफ्ट होता है, आपका मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाता है। आपको अगर मिलियनर बनना है या आपको एमबीए करना है तो ये ईजी हो जाता है। तो उस मकसद से वो लोग मुझे फॉलो करते हैं। मतलब आपको एंकरिंग करना पड़ेगा। एनएलपी में हम यही एंकरिंग सिखाते हैं कि उनका जो मोटो है, उनका जो विश गोल्स है, उसको किस तरह से आप इस संस्कारों की चीजों से कनेक्ट कर दें, तो फिर वो करेंगे, है ना। अगर आप बोलोगे नहीं आपको भगवान को मानना है, मैं क्यों मानूं, लेकिन आप बोलोगे नहीं, अगर आप भगवान को मानोगे तो आपका 70% एनर्जी राइज हो जाएगा और आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, आप अच्छी स्कोर करोगे, अच्छा ऐसा होता है, हाँ तो हम करेंगे। सो दे नीड सम प्रूफ। तो मेरे पास ऐसे काफी गैजेट्स है, इक्विपमेंटल गैजेट्स है, जिससे मैं लोगों को प्रूव करके बताता हूँ कि आपकी एनर्जी फील्ड, ऑरिक फील्ड देखो कितनी पॉजिटिव हो गई ये करने से। राइट। सो हम बच्चों के लिए ये सारे प्रोग्रामिंग रख सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है आपके मतलब स्कोरिंग परसेंटेज बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमें सिर्फ उनको स्कूल का एजुकेशन नहीं देना है, हमें उनको सोल का एजुकेशन भी देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बिलाबोंग के बच्चे कितने भी कोई भी कंट्री में जाएंगे तो वो आपके संस्कार लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप से संस्कार नहीं लेते, आप लोगों से लेते हैं। वो ज्यादा समय आप लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, हम लोगों के साथ स्पेंड नहीं करते। तो सिर्फ अगर आप उनको एजुकेट करना चाहें, नॉलेज देना चाहें, ये बात अलग है। लेकिन अगर आप उनको सोल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें तो ये तो और भी बड़ी बात होगी, और रियली बच्चे यूनिक होंगे। मेरे बच्चे पहले गुरुकुल में थे और उसके बाद आपके स्कूल में आए, तो मुझे ये फायदा हो गया कि वो पहले से ही मतलब वो थोड़ी डिसेंसी से, इनोसेंटली और साइलेंट रहे वो, और आप लोगों ने उनको और ज्यादा अपग्रेड कर दिया, तो मुझे ये बहुत खुशी हो गई, ऐसा है करके, है ना। तो शायद इसलिए हम हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। हम इसलिए आज ये टॉक दे पाए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी था कि हम सब बच्चों को अपग्रेड करना है करके, राइट, सोल लेवल पे। थैंक यू वेरी मच। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैं सिर्फ 10th से यहाँ निकला हूँ, 12th से निकला हूँ, नहीं मैं तो सोल लेवल से यहाँ पे निकला हूँ। तो फिर पेरेंट्स बेफिक्र रह जाएंगे कि मेरा बच्चा कहीं पे भी यूएस जाता है, मुझे पता है वो एडिक्टेड नहीं होने वाला है, ऐसा है करके, है ना। तो सिर्फ उसके माइंड को नहीं, हम उसके अनकॉन्शियस माइंड को भी क्लियर करेंगे, उसके सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके बच्चे को कहीं पे भी भेजेंगे। उसके फिर रिलेशनशिप अच्छे होंगे, उसकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, करियर लाइफ अच्छा हो, मतलब हर चीज अच्छी हो जाएगी उसकी। या या
सॉरी, मैं थोड़ा बहुत फास्ट गया था आज के टॉपिक पे, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ दे दूं। तो कुछ लोगों को थोड़ा जम्बलिंग हुआ रहेगा, बट आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोग ने रिकॉर्ड किया है तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, है ना? क्योंकि जितनी बार सुनोगे ना बहुत अच्छे से एक्नॉलेज कर पाओगे। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?